डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा जेरंड, यूसेज ऑफ जेरंड्स, इन्फिनेटिव्स, टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। आइए अब हम सीखते हैं पार्टिसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय ए पार्टिसिपल? पार्टिसिपल is of basically three types. For example, present participle, past participle and perfect participle. Participle तीन प्रकार के होते हैं: present participle, past participle and perfect participle. Participle partly acts as a verb and partly acts as an adjective. हमने इन्फिनेटिव और जेरंड के केस में सीखा था कि इन्फिनेटिव और जेरंड किसी भी सेंटेंस में नाउन के जगह पर काम करते हैं, नाउन का रोल प्ले करते हैं, परंतु पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव्स। ये वर्बल एडजेक्टिव्स हैं जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। पार्टिसिपल एक वर्ड भी हो सकता है, पार्टिसिपल कोई फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है। आइए हम पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा जानें कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल इज बेसिकली एन एडजेक्टिव। इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव्स। ए वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव इज नोन एज अ पार्टिसिपल। इट मे बी अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, अ पास्ट पार्टिसिपल एंड अ परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा V1 प्लस ing। अब आप ये कह सकते हैं कि यही स्ट्रक्चर तो जेरंड का भी था। यस, बिल्कुल था, परंतु when V1 ing acts as a noun in a sentence, it is a gerund. But when V1 ing acts an adjective in a sentence qualifying a noun, then it is a present participle or a participle. For example, playing children. यहां पर what is children is a noun and what is playing? कैसे बच्चे? Playing children, खेलते हुए बच्चे। पार्टिसिपल में आप इस प्रकार से हिंदी में भी समझ सकते हैं, ऐसा करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग चिल्ड्रन, खेलते हुए बच्चे। फॉलिंग लीव्स, लीव्स अगेन नाउन, ट्रेन अगेन नाउन। फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां या गिरते हुए पत्ते। बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन। दीज V1 ing forms qualify the following nouns. That is why they are acting as an adjective or a participle, a present participle. A present participle ends in ing, acting as an adjective in a sentence. Next is past participle. आइए हम past participle के स्ट्रक्चर को समझते हैं। Past participle means when a verb ending with ed, d or en, then it is known as a past participle. But what is the condition? The condition is that it should play the role of an adjective in the sentence. For example, ironed clothes, a retired clerk. Here clerk is a noun. कैसा clerk? A retired clerk. ed, verb or a word ending in d, ed or en acting as an adjective qualifying a noun is a past participle. A retired clerk. A broken chair. Here chair is a noun and it ends in en. It ends in ed. A broken chair, chair is again a noun and broken is acting as an adjective. कैसी chair? Broken chair. Next is apple. As you know, apple is a noun and rotten. कैसा apple?
rotten apple, a rotten apple, एक सड़ा हुआ सेब, a rotten एक पका हुआ सेब, a rotten apple, तो इसके लिए हम कह देंगे it is acting as an adjective when words ending in ed, d or en act as an adjective in a sentence, they are known as past participles. Next is perfect participle. What do you mean by perfect participle? Its structure is having plus perfect form or having plus V3 in case of active voice of the sentence, and having been plus V3 in case of passive voice of the sentence, passive form of the sentence. Having V3, having been V3 is perfect participle. For example, having eaten, having sold, and so many other examples. आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस में पार्टिसिपल्स के रोल को देखने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है आई सॉ अ गर्ल। ये सेंटेंस यहां पर खत्म भी हो सकता है, बट आई सॉ अ गर्ल, हियर गर्ल इज अ नाउन। कैसी गर्ल? कैरिंग अ बास्केट। मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जो बास्केट लेकर जा रही थी या बास्केट को ले जा रही थी। कैरिंग अ बास्केट। हियर दिस वर्ड कैरिंग is a present participle because it is acting as an adjective to qualify this girl. It tells something more about this girl. I saw a girl carrying a basket. A rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. Here, this stone is a noun. कैसा stone? Rolling stone. लुढ़कता हुआ stone. This word rolling is acting as an adjective. A rolling stone gathers no moss. Next is I saw a tree. I saw a tree laden with fruits. Laden with fruits. Here this is a past participle. Laden with fruits. कैसा पेड़ देखा? फलों से लदा हुआ। यहां पर ये नाउन है ट्री और ये वर्ड लेडन इस ट्री के बारे में कुछ और मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ और बता रहा है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ए वेल नोन सेइंग। कैसे डॉग्स? जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स। हियर दिस वर्ड बार्किंग इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग दिस नाउन डॉग्स। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल विभिन्न सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। आइए अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से वन बाय वन डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग। ई लर्निंग भिवानी में आपका स्वागत है। आइए अब हम नॉन फाइनाइट्स का अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपल, यूसेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। इन केस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल वी यूज V1ing एज एन एडजेक्टिव व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अनदर। जब दो एक्शन एक दूसरे के बाद लगातार हो रहे हों, ऐसे केस में हम पहले एक्शन के लिए या एक एक्शन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग द ड्रॉर, ओपनिंग द ड्रॉर, ही टुक हिज बॉक्स। ड्रॉर में एक बॉक्स रखा था, तो बॉक्स का निकालना और ड्रॉर का खोलना दोनों एक्शन लगभग साइमल्टेनियसली एक के बाद दूसरे के रूप में हुए। इसलिए पहले एक्शन के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ओपनिंग द ड्रॉर, ही टुक हिज बॉक्स, और ही टुक हिज बॉक्स आउट। सेकेंड सेंटेंस, पिकिंग अप द स्टिक, ही लेफ्ट द रूम। यहां पर स्टिक, छड़ी उठाने का काम और कमरा छोड़ने का काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं वन आफ्टर अनदर। तो पहले जो एक्शन हुआ
उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पिकिंग अप द स्टिक, ही लेफ्ट द रूम। नेक्स्ट इज आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। प्लेइंग इन द गार्डन, प्लेइंग इन द गार्डन, वो पहले से ही खेल रहा था। प्लेइंग जो एक्शन है वो पहले से हो रहा था। एंड आई सॉ हिम प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट इज हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वॉक अप। बच्चे के उठने का एक्शन और उसके नॉइज के सुनने का एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। पहले एक्शन के लिए हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वॉक अप। इस प्रकार से हम पहले सेंटेंस में ओपनिंग, दूसरे में पिकिंग, तीसरे में प्लेइंग और चौथे में हियरिंग, ये जो वर्ब्स का यूज हुआ है इनका यूज यहां पर एडजेक्टिव्स के रूप में हुआ है फॉर द एक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अनदर। इस प्रकार से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दो एक्शंस के साइमल्टेनियसली होने की स्थिति में पहले एक्शन के लिए करते हैं। आइए अब हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल के यूसेज की। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम पास्ट पार्टिसिपल के यूज को समझने का प्रयास करें। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, खोया हुआ अवसर पुनः कभी नहीं लौटता। A lost opportunity. What type of opportunity? Lost. Here, opportunity is a noun and lost is acting as an adjective, which is a past participle here. A lost opportunity never returns. Next is a burnt child dreads the fire. दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, फूंक फूंक कर पीता है। A burnt child dreads the fire. एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। एक बार किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का हाथ अगर आग में जल जाए तो वो पुनः आग के पास नहीं जाएगा। A burnt child dreads the fire. Child is a noun and burnt is the past form of the verb acting as an adjective in this sentence, qualifying this child. Next is he wears a worried face, a worried look. आज उसका जो चेहरा है वो ऐसा लगता है चिंतित है। worried look. Here look is a noun and worried is the past form of verb acting as an adjective, means past participle. Next is deceived by his relatives. अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, संबंधियों से धोखा खाने के बाद he lost his hope, उसने अपनी सारी आशाएं खो दी, कोई आशा उसकी नहीं बची। Deceived by his relatives. Here this word deceived is used as a past participle. Next is time misspent is time lost. अगर आप टाइम का दुरुपयोग करेंगे, गलत तरीके से उसे बिताएंगे तो वो टाइम लॉस्ट होगा। मींस यहां पर मिस स्पेंट जो वर्ड है इट इज एक्टिंग एज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर दिस नाउन टाइम। व्हाट टाइप ऑफ टाइम? विच टाइम? मिस स्पेंट टाइम। विच टाइम इज लॉस्ट? द टाइम मिस स्पेंट। इस प्रकार से हम पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज नाउन्स को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स के रूप में डिफरेंट सेंटेंसेस में करते हैं। अभी तक हमने दोनों पार्टिसिपल्स डिस्कस कर लिए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। आइए अब हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल एंड इट्स यूजेस। एज यू नो, परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर? हैविंग प्लस V3 or having been plus V3 in case of passive voice. Usually ये sentences having plus V3 और having been plus V3 से start होते हैं। हम perfect participle का यूज तब करते हैं जब कोई एक एक्शन शुरू होता है पहले वाले एक्शन के कंप्लीट होने के बाद। अर्थात
completion of one action before the beginning of another one. एक एक्शन के कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा एक्शन शुरू होता है तो हम उस कंप्लीटेड एक्शन के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, हैविंग प्लस V3। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करें। हैविंग रेस्टेड, रेस्ट लेने के पश्चात, हैविंग प्लस V3, हैविंग रेस्टेड वे कंटिन्यूड आवर जर्नी। Having completed their homework, they started playing. Having finished his dinner, he slept. And having lost my license, I applied for the duplicate. इस प्रकार से having rested में ये एक्शन रेस्ट करने का एक्शन है और एक जर्नी को कंटिन्यू करने का एक्शन है। रेस्ट के पश्चात जर्नी कंटिन्यू करने का एक्शन शुरू हुआ है, इसलिए रेस्ट वाले एक्शन के लिए हैविंग रेस्टेड फिर कोमा का यूज करेंगे। हैविंग रेस्टेड वे कंटिन्यूड आवर जर्नी। यहां पर ये एक एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। हैविंग कंप्लीटेड देयर होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट करने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और गेम्स खेलने का जो एक्शन है वो अभी शुरू हुआ है। हैविंग कंप्लीटेड देयर होमवर्क दे स्टार्टेड प्लेइंग। थर्ड सेंटेंस में डिनर करने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और स्लीपिंग का जो एक्शन है वो अभी शुरू हुआ है। हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर ही स्लेप्ट। एंड देन हैविंग लॉस्ट माई लाइसेंस, लाइसेंस खो जाने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई। Having lost my license, I applied for the duplicate. इस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज इन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे। हमने नॉन फाइनाइट्स को डिटेल में डिस्कस किया। नॉन फाइनाइट्स की सभी पार्ट्स को, अर्थात जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स एंड देयर यूसेज एंड स्ट्रक्चर्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। आप अपने पिछले पेपर्स में से नॉन फाइनाइट के क्वेश्चंस उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में आती है, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड कंसल्ट विद योर टीचर। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे, रूल्स को, सेंटेंसेस को लिखेंगे, यू विल नेवर लूज मार्क्स इन द क्वेश्चन ऑफ नॉन फाइनाइट्स। Thank you very much.